CA Lalit Kumar Mahawar, Vice Chairman of Cuttack Branch. A great pleasure in welcoming our renowned speaker, CA Abhishek Agrawal from Calcutta, from your city, to the dais. Abhishek sir. Topic is My Data, My Development, Enhancing Offline GPT for Secure AI. Abhishek sir, please welcome to dais. Now I introduce CA Abhishek Agrawal ji. Abhishek Agrawal ji is a practicing chartered accountant in AP Agrawal and Associate, Calcutta since 2018. He is DISA qualified, holder of Diploma in Insurance Risk Management, certified concurrent auditor, certified in forensic audit and fraud detection and AICA Level 1. Completed multiple certification in AI, Gen AI, prompt engineering and more. Specialized in accounting services for MSME with a focus on internal audit, business consultancy, office automation and system implementation. Deep interest in forensic audit, fraud investigation and system audit. Committed to continue learning and staying ahead in the dynamic field of finance and technology. An AI enthusiastic, fascinated by the possibility of artificial intelligence to solve real-world challenges. Join him as he explores how AI can redefine the future and empower you to deliver exceptional results. Sir, Abhishek sir. So many of us, good afternoon. I'm CA Abhishek Agrawal. So today we'll be exploring the topic of MyGPT, that is, will be deploying the GPT on our system, that is our local server, okay? And see how we can use that LLM to create tools and solve our day-to-day issues, right? So we'll take one use case today. This is the QR code which you can scan. Many of us are headed for lunch. I will not stop you for more than 30-45 minutes. So you can scan this QR code. What you will get is the PPT, which we'll be exploring today, and the PyCode of the tool. The tool is a summarization tool along with an OCR reader. So generally OCR reading is what is very much required in our offices as professionals, right? And there's the installation guide, a detailed installation guide about the tool, along with the LLM, offline LLM which we'll be using, that is the Ollama. So how many of you have heard about Ollama? Anyone of you have heard about Ollama? Right. So since we are stuck in ChatGPT, we are stuck in Claude, we are stuck in Perplexity, and we are also stuck in the cloud of data privacy myth, right? But being a responsible professional, we cannot take our clients' data online. Do you agree? So as Shyam sir duly pointed out that we need to retract the information, right? क्या करना पड़ता है अपने को छुपाना पड़ेगा पैन नंबर जीएसटी एंड एवरीथिंग so that is very vital. Then only you can take the data online. Ethical concerns, right? And there's the Ollama setup guide. So probably you might not be able to install everything right now, but this is an elaborated guide
where after scanning this code you will get all these files and you can do entire setup if you go step by step, right? So ones who are interested in trying that tool can do that. So my data, my deployment, right? Harnessing offline GPT for secure AI. So being a professional as chartered accountant, privacy is our primary concern, right? So there's something called internal data, external data, private, public, right? So suppose, as Shamsa pointed out, like, if it's a financial or private limited company, it's a public data. So there's no harm taking that data online and fetching or analyzing that data online on ChatGPT or any other tool. But suppose if it was a proprietorship concerns data, so generally what you cannot take that online until and unless you have redirected the information. As chartered accountants, that is our foremost requirement, that we keep the client's data safe, right? We'll touch that tool today, where we'll be harnessing the power of Ollama, where we'll be calling models, that is offline LLMs, where we can analyze the data and create our own solutions, right? So, just a disclaimer. So why my data, my deployment? The challenge we face is, as CAs and finance professionals, we handle highly sensitive information, income tax notices, GST scrutiny documents, bank statements, and whatnot. Confidential client data like PAN, Aadhaar, bank details, right? You cannot take that data online on any model. So, pain points with cloud AI, that is the ChatGPT or Claude or any other model like Perplexity, is what? The data privacy and confidentiality concerns, regulatory compliances like the upcoming DPDP or already the upcoming DPD Act, API cost, like Shamsa showed one solution and on N8, right? So it involves some cost, API cost and the solution cost. And the vendor lock-in periods for a 3-year period or a 5-year period, right? The solution, what's the solution to that? The offline GPT and the local LLMs which we can deploy in our system, that is the local server here. How we'll do that? We'll see one use case. What is a local LLM? First, let's understand that. A large language model running directly on your laptop or office server, no cloud required. So we'll be running that solution and I will take that offline, like I will switch off the internet and take it airplane mode and show you that whether it's running or not. Data sovereignty, your data stays within your machine or local network, complete control over confidentiality, right? One-time setup. So every solution needs a vision. So once you vision that, okay, I need this and this solution, and you draft a solution, that is one-time exercise you do. And generally that exercise will run for coming days, right? Until and unless some other changes come, statutory changes come, right? So the key benefit for chartered accountants, complete data sovereignty, client data never leaves your premises. मतलब बोलते हैं ना अपना client data दहलीज पार नहीं करने देंगे. And predictable cost, no per person or per token charges, the API cost or any other charges, those are not involved here. Professional ethics alignment, better control over confidentiality per CA code and customizable workflows. Whatever customization workflows like in N8, what Shamsa showed, ये solution हम लोग लगा सकते हैं, ये workflows लगा सकते हैं, right? Same can be visioned here and same can be designed here over local LLMs. So privacy first AI architecture, that is the user is your CA or the staff. It's offline GPT interface. Local AI models like Ollama will also visit LM Studio. I will show you Jan AI. We can test the use cases there itself. Local storage, that is in your very system. And optional security layer. You can encrypt that, you can access that through VPN, and you can also set user access rights. So in that folder, I have given you one PyCode. So generally to develop a solution, what we do is, we use some language, right? In my case, I have used a language called Python. So I have developed the solution on Python. So this is the solution.
See, what this tool does is, it browses your PDF or image, maybe a notice or circular, or maybe an income tax return of your client, or maybe any other sensitive data which you cannot take online, right? So what it does is it accesses your client's internal data. Then I have used an offline model, that is Llama 3, and any various other models are there. I will show you how we can fetch that, right? What it does is it takes a prompt. You are a tax expert as a chartered accountant, now summarize this document for me, okay? And it also performs the OCR function. Generally in case of images and what, वो read नहीं कर पाएगा. तो images से OCR reading, optical character recognition is what we do, and fetch the data from that very image or the very PDF, right? And start the analysis. So we just see first. So you can see this is a circular dated back 27th May, where the date extension came in, right? So this is an image. This is an image. So this demo is designed just for this very single page. What happens generally is you are accessing client's data which might extend to n number of pages, 200, 400, 4000, right? In that case, you will understand what's the utility of this use cases. So I will use a model and ask it to summarize this. So now it is reading that OCR. It is reading that image. We'll visit this, how we have developed this, we'll visit that topic. So it's performing the OCR of that image and it's summarizing that entire document into 5 points. I've asked it to summarize this entire document into 5 points. So an LLM model installed in your very local server will take toll on your system. So generally it's a high-end hardware device which we prefer. So more or less a 16 GB RAM, and if it's a GPU enabled system, it's good. Mine is a non-GPU system, so it will take a little more time, right? Why? Because there are different models. This is a text recognition model. So ये text को recognize कर रहा है image में. There are some data sets which might access images. There are some data sets which might access videos. So उनके लिए जो मॉडल है वो GPU based ही रन करेंगे सिस्टम. We'll visit that as well. So now it is summarizing the document, and this very setup ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है. See, if you want to perform this entire step, एक के बाद एक कौन सा अपने को मॉडल चूज करना है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है. Complete setup guide, that is your system requirements. Download Ollama. So we visit this platform. अच्छा अभी सिस्टम में नेट नहीं चल रहा है मेरे. We can download this platform Ollama from this very site, okay, and install the Ollama. Next process, verify the installation. See, अपने as professionals, we are sticking to ChatGPT, Claude, Perplexity, right? We'll have to go beyond that and think of automation. Like automation as in using Python, or automation as in developing solutions which can solve our day-to-day task. ये एक छोटा सा solution है जहाँ पे summarization solve हो रहा है. ये एक छोटा सा solution है जहाँ पे OCR reading solve हो रही है. आप वो solution develop कर सकते हैं using that local LLM, जहाँ पे आप GST reconciliation solve कर सकते हैं, और any other functionality which you
विश टू सॉल्व, राइट? थोड़ा सा विजनरी होना पड़ेगा कि हम क्या चीज सॉल्व कर सकते हैं। Download the Ollama model, okay, and set up this. If you want, you can access other LLMs as well. जैसे Ollama प्लेटफॉर्म पे different LLM मॉडल्स हैं जो कि different फंक्शनैलिटी के लिए है। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा नेट पे जाके। So still performing the OCR. सर इससे नॉन GPU सिस्टम ये डेमो पर्पसेस के लिए बनाया हुआ था। नहीं लगेगा सर, देखो अगर हाई एंड CPU सिस्टम है आपका तो इट विल परफॉर्म फास्ट। And you can run that model. Similarly, there is a setup guide. How you can develop your own tool, right? So you can install and run this offline GPT tool. I have given that PyCode for your testing purposes. You can do is install Python. How you can install Python? It's given in there. You can install the required Python libraries. जैसे GPT में अपना मोबाइल में अपना प्ले स्टोर होता है, different apps होते हैं, Python में different libraries है जो कि different functionalities के लिए होती है। And install Tesseract OCR engine. So what is Tesseract OCR engine? OCR is optical character recognition, right? तो वो recognize करने के लिए एक तो tool है Tesseract, जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, जब जाकर के वो आपके इमेज या PDF को रीड कर पाएगा। ओके, यू विल हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स यू कैन सॉल्व योर क्रिएट योर सॉल्यूशन एंड देन इंस्टॉल Ollama। ओके, अपने वो जाके नेट पे दिखाएंगे आपको कैसे होता है। सो आफ्टर यू इंस्टॉल Ollama, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के यू हैव टू पुल दी LLM मॉडल्स, जैसे Llama 3.2, Llama 3 और एनी अदर मॉडल, वो आपको पुल करना पड़ेगा। सब शेयर किया हुआ है सर, वो जो लिंक QR कोड मैंने दिया था उसमें ये सारा कुछ शेयर किया हुआ है, द एंटायर प्रोसेस, बट आपको अपना हाथ गंदा करना पड़ेगा। नॉट गेटिंग इट सर। QR कोड, ओके। So this is the QR code. You can scan this and you can get access to all the files. ये टाइम कांस्टेंट सेशन है, दिस इज नॉट अ वर्कशॉप, सो यू माइट नॉट बी एबल टू डू एवरीथिंग, बट अगर आप ये जा करके, जैसे होता है ना होमवर्क मिल गया काइंड ऑफ, अगर घर पे जाकर के इसको फॉलो करेंगे तो इट विल हार्डली टेक 1 or 2 hours एंड यू कैन क्रिएट योर ओन सोल्यूशन। And you run the offline GPT analyzer tool, okay? So this is how you run that tool. The entire process is given here. Maybe it's stuck somewhere. No problem, we'll take it in a different way. So this is also running offline. It does access to internet. ये offline ही चल रहा है।
आप अपना कैटेगरी वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, जनरली वी एक्सेस दिस टाइप ऑफ डेटा। सो ये एक सोल्यूशन बनाया हुआ है जहाँ पे अपने अपने हिसाब से अपने कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। सो ये टैक्सेशन रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट में आ रहा है। इफ इट्स अ असेसमेंट ऑर्डर और a notice, you can define that and set the language or prompt accordingly and act as a chartered accountant. And again, summaries. So this is also running offline. We'll restart this. Let's see. Let it perform. We'll just see Olama वगैरह कैसे डाउनलोड होता है. What's the name of what? So basically ये है आपका ऑफलाइन सोल्यूशन Olama. When you go into Olama and you download this in your system, okay? You download this in your system. Now after downloading Olama, what generally you have to do is so now we are accessing 3.2, that is an offline LLM model. ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है तो ये बोलेगा ऑलरेडी fulfilled, I guess. See, it's already there in my system. Otherwise, it would have downloaded that model. So various models differentiate in sizes. कोई 1 GB का होगा, कोई 4 GB का होगा, कोई 12 GB का होगा. And how we decide which model to use is here. See, so these are all free models available online, right? Now, this is the GPT versus model that is OpenAI, ChatGPT का model है. Suppose if you want to use an offline ChatGPT का model, you will have to call this model, pull this model or download this model. Now the problem with this model is कि ये कितना बड़ा model size है. It will range around 18 to 20 GB in size, right? So is your data worth this much huge model? ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो text recognition के लिए है तो in that case this model might not be required, right? And if it's for image recognition or image analysis तो वो model शायद required है. So ये different models है जो कि आपको offline download करने पड़ेंगे अपने system में. And the larger the model, the bigger the model, it would require a GPU enabled system जो कि 4 GB का एक GPU सपोज आपके सिस्टम में है तो it will function fast. So now there are different models available online. ChatGPT का है, Qwen, DeepSeek, GLM, Embedding Gamma,
Guema है, DeepSeek का, Llama, this is Llama model from Meta, right? So these are different models. So Llama 3.1 is a new state-of-art model for Meta available in 8 billion, 70 billion इसका token size है, जो कि इसको training मिला हुआ है kind of, and this different sizes and different models is what you will have to analyze or you will have to pull that. Now अगर यहाँ पे मैं बोलता Llama pull, जैसे मेरे सिस्टम में आई गेस मिस्ट्रल है, Qwen 2.5 नहीं होगा या 5.3 नहीं होगा, तो 5.3, okay, 5.3 is already there, Llama नहीं. So now what's ये कर क्या रहा है, ये एक मॉडल डाउनलोड कर रहे हैं सिस्टम में जो कि एक ऑफलाइन LLM है एंड उसका साइज है 4.1 GB, राइट? सो ऑल मॉडल्स वेरी इन साइज और इनका टोल है आपके सिस्टम के ऊपर. तो ये नहीं है कि आप सारा मॉडल डाउनलोड करके सारा कुछ ऑपरेट कर लेंगे. आप जो टूल भी बनाएंगे उसको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं कौन से मॉडल को यूज करते हुए सोल्यूशन अपना डिराइव करूँ. तो अगर अपने वो पाइकोड को विजिट करते हैं, सी थियरी एंड प्रैक्टिकल में ये डिफरेंस है कि एज प्रोफेशनल्स वी आर विजनरीज, अपने सोल्यूशन सोच सकते हैं एंड ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, बट अभी तक कर नहीं रहे. बट अल्टीमेट रिक्वायरमेंट ऑफ द डे इज यू नीड टू ऑटोमेट योर ऑफिस प्रोसेसेस, ठीक है ना? तो अब अपने वो इसको ये पूरा डाउनलोड करेगा और आपके सिस्टम में ये मॉडल आ जाएगा. मैं इसको बीच में ही बंद कर रहा हूँ. अपने एक बार ये पाइकोड को विजिट कर रहे हैं. तो Python is not a tough language. Python मेरे को नहीं आती है. As chartered accountant, I was never taught any language. Python नहीं आती. तो किससे सीखें? Right? ये अपने को सीखना पड़ेगा to ChatGPT, Grok, Claude, जो भी मॉडल अवेलेबल है, उसको आपको जैसे श्याम सर ने बताया कि आपको विजन बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपका और क्या सोल्यूशन आप बनाना चाहते हैं. उसको आप पूरा डिटेल में वो प्रोसेस बताएंगे एंड वो आपको वो कोड जनरेट करके दे दे, राइट? तो अब ये सोल्यूशन जो बनाया उसने, इसमें डिफरेंट LLM मॉडल्स जो यूज हो रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा. सी यू कैन सी दिस मॉडल्स. मैंने उसको यहाँ दिया ऑप्शन टू सिलेक्ट LLM मॉडल. ये LLM मॉडल्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी हैं, तो वो चाहे जो LLM मॉडल उसमें से सिलेक्ट कर सकता है. तो मैंने वहाँ पे उसको एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दे दिया कि आप इस LLM मॉडल्स में से आप जिसको मैं सिलेक्ट करूँ उसके बेसिस में वो टूल को रन करो, राइट? अगर आप यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू डिलीट दैट LLM. सब LLM सारे सॉल्यूशंस के लिए नहीं होता है. तो ये ऑनलाइन जो HTML पे चल रहा था, इसने वो समराइज करके दे दिया, राइट? इसने वो समरी निकाल के दे दिया. क्या एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई प्रोवाइड द फॉलोइंग समरी. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज एक्सटेंडेड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग. सो सपोज इट वाज अ 4000 पेज डॉक्यूमेंट. आपके पास समय ही नहीं होगा कि आप सारा कुछ उसमें रीड करें, राइट? उस केस में क्या होगा, ये समरी वाला टूल जो है आपको पूरा डॉक्यूमेंट समराइज करके दे देगा. अंडरस्टैंडिंग द यूज केस, ये जस्ट एक डेमो पर्पस के लिए कि मैं एक सिंपल सर्कुलर का समरी निकाल रहा हूँ. बट व्हेन यू आर एनालाइजिंग लॉट ऑफ डेटा, जहाँ पे केस लॉज है, क्लाइंट का डिफरेंट डेटा सेट है और सेल्स रिपोर्ट है, मे बी एनी परचेज रिपोर्ट है, एक्सेल्स है, डिफरेंट सेट्स, और उसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, राइट? तब उस केस में इसका यूटिलिटी डिफरेंट हो जाएगा. Yes. Where, sir? Sir, it is the second bullet. Apply specifically to accessibility the specified category. Right. I wanted it to specify the categories which I wanted to know. Yes, you can do that, sir. It can be done. As we were speaking, Shyam sir, it was about prompt engineering.
So if you write a specific set of instruction, you can define the logic. If you define the logic, you can derive that data. So now this tool has performed. Okay. इसको मैंने जो दिया था डेटा सेट कि as per a tax expert chartered accountant summarize the document in 5 concise points. So उसने जो एनालिसिस यहाँ पे निकाल के दिया है, as a tax expert chartered accountant I summarize the document in 5 concise points. Point 1 extension of due date. Point 2 applicability. Point 3 authority for extension. Point 4 distribution of circular, publication and online placement. Right? Just a single page document which it just analyzed. यहाँ पे आपको यूज केस ये समझना पड़ेगा कि ये मैंने डिजाइन किया सर्कुलर के लिए. आप अपना क्लाइंट का डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, मे बी इट माइट बी सेल्स रिपोर्ट, राइट, जिसकी समरी आपको डिफाइन करनी है. वो सोल्यूशन आप वहाँ पे उसको दो कि मेरे को डेटा सेट इस तरह से आप समराइज करके दे दो. अंडरस्टैंडिंग दैट यूज केस. तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा लॉजिक कि आपको अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन उससे चाहिए. एंड आप इसको चाहें तो टेक्स्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट. आप इसको चाहें तो डॉक यानी वर्ड में ले जा सकते हैं, वर्क ऑन दैट डेटा फर्दर, राइट. जनरली क्या होता है कि वो नोटिस है रॉ टेक्स्ट ओसीआर, ये बहुत वाइटल फंक्शन है जो कि एज सीएस हम लोग को डे इन डे आउट यूज करना पड़ता है. कोई डेटा सेट है, इमेज फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में है, विच इज स्कैन्ड, और अपने को उसका डेटा सेट यानी मान लो आपको सेम टू सेम ड्राफ्टिंग भी अगर करना है, राइट, तो क्या करेंगे जनरली वो इमेज या उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने स्टाफ को लगाएंगे टू राइट दैट डाउन, राइट. इट विल टेक मतलब 1-2 घंटा तो ले लेगा अगर वो 10 पन्ने 20 पन्ने का डॉक्यूमेंट है तो, राइट. बट ओसीआर के केस में क्या है, उस डॉक्यूमेंट का जितना ब्रीफ था, राइट, यहाँ पे देख लीजिए सर्कुलर डेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट. सर्कुलर नंबर आ गया, डेट आ गया, एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, राइट. नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो उसका जिस्ट था वो आ गया. एंड यहाँ पे एंटायरिटी में आपका कॉपी टू एवरीवन सारा कुछ आ गया, राइट. So this has performed the OCR and it has performed quite well. And इस केस में क्या करना है, अब आपको चाहिए कि आप इस डेटा सेट को ले जाना है, you can use this data set, right, anywhere. And now you can work on that. So this is a very vital function as CS day in day out अपनी OCR function use करना पड़ता है. Now you can add functionalities to this tool. I have given you the demo PyCode, right? Installation का पूरा process उसमें आपको दे दिया. It's not tough. जो process है Python कैसे install होगा वो simple है. You go on the Python page. You download Python like any other program and you just save on your system, right? कुछ रन करने में दिक्कत नहीं होगा. डाउनलोड करने के बाद there are various tools. जैसे अगर आप वो वर्ड फाइल में अगर जाएंगे तो वो वर्ड फाइल में डिस्क्रिप्टिवली लिखा हुआ है कि how you can see Python, right? ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है. पाइथन के साइट पे आपको जाना है, लेटेस्ट वर्जन आप वहाँ पे डाउनलोड कर दिया, आपको वहाँ पे ऐड टू पाथ का एक ऑप्शन देता है, वो ऐड टू पाथ आपने कर दिया एंड यू प्रोसीड. जनरली दिस हैवी प्लेटफॉर्म्स जैसे पाइथन, ओलामा एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी एक्सेस डायरेक्टली थ्रू दी पाथ सिस्टम फाइल्स, राइट. वो आपको करना है, बस वो करके आपको इंस्टॉल करना है एंड यू रन दैट, और कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला. अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट में चलाना है आप कमांड प्रॉम्प्ट में चला सकते हैं.
अगर आपको चाहिए कि आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी जिसके अंदर वो पाइप फाइल्स और डिफरेंट फाइल्स चले, तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल अपने चलेगा विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। सो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने डिफरेंट कोड एंड ऑल सारा रिस्ट्रक्चरिंग, एडिटिंग, टाइपिंग सब कुछ कर सकते हैं। ओके, यू क्रिएट ए न्यू फाइल, अ पाइथन फाइल। सो उसके लिए पाइथन रन करने के लिए आपको पाइथन के लिए विजुअल स्टूडियो है, जुपिटर नोटबुक है, पाईचार्म है, ये सारा कुछ चैट जीपीटी आपको बता देगा। तो चैट जीपीटी से सीखना क्या है वो भी एक पॉइंट है कि अगर आपको उससे प्रोसेस समझना है कि मेरे को ये कैसे करना है, तो आज तक चैट जीपीटी फ्री है अभी तो ना, तो आज दैट कि उसमें क्या क्या सीखना है आपको वो आपको बता देगा, राइट। और ये सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। दिस इज अ कोड ओपन इन विजुअल स्टूडियो, राइट। एंड जब आप थोड़ा इसमें हाथ गंदा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज है। एंड इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट टफ। जनरली क्या है, वी आर स्टिकिंग टू ओनली चैट जीपीटी, क्लॉड, रीजन बीइंग कि अपने को उतना ही पता है। बट एज प्रोफेशनल्स, एज सीएस, आपको प्रोसेस अपने ऑटोमेट करने हैं, ऑफिस के प्रोसेस ऑटोमेट करने हैं, जहाँ पे विषय ऑटोमेशन कहाँ रिक्वायर्ड रहेगा, जहाँ पे टाइम सेव हो सके। जो भी प्रोसेस में आप टाइम सेव कर सके वो रेपिटेटिव इन नेचर, अ टास्क व्हिच इज रेपिटेटिव इन नेचर नीड्स टू बी ऑटोमेटेड, राइट। अगर वो 4 घंटे लग रहा है उसको पूरा एआई समरी, पूरा मतलब आपका इनकम टैक्स का एक्नॉलेजमेंट से पूरा समरी बनाने में, सपोज देयर आर 50 एक्नॉलेजमेंट्स और आपने उसको टास्क दे दिया समराइज दिस एंटायर, सब एक्सेल में डाल दो, नाम, एड्रेस, पैन नंबर। सो दिस इज अ रेपिटेटिव टास्क इन नेचर, राइट। ये मैनुअली नहीं होना चाहिए अपने ऑफिस में। नाउ इट नीड टू टेक दैट हाउ, ये सोल्यूशन है उसका। एंड दिस कैन बी डन ऑफलाइन, दिस नीड नॉट बी डन ऑनलाइन बिकॉज डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है, राइट। सो हार्नेसिंग द पावर ऑफ लोकल एलएलएम्स इन आवर वेरी सिस्टम, जहाँ पे जैसे वो समराइजेशन का टूल किया, इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आज कोई भी हाई एंड लैपटॉप लेते हैं हमें 50-60,000 का इन्वेस्टमेंट आई गेस, राइट, but it's worthwhile investment and you can create solutions on it. Simple सा problem statement को लेकर के जाएं ऑनलाइन, चैट जीपीटी से ही पूछना है कि इसका क्या solution है, take that and create on local LLM. यूज क्या करेगा वो LLM, that is the local system में जो installed है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने ओलामा लामा 3.2 लैंग्वेज वैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरह आगे बढ़ते हैं जब, so there is something called LM Studio, okay. So LM Studio is again a platform where we can access offline LLMs, ठीक है। और elaborately ये explain कर रहा है, चीज को समझिए कि आपके ऑफिस में अगर कोई सोल्यूशन ऑटोमेट हो सकता है और अगर आप उसको आज के डेट में ऑटोमेट नहीं कर रहे हैं तो वो एक क्राइम है, राइट। थोड़ा सा उसमें एफर्ट देंगे और अगर उसको आप ऑटोमेट कर लेंगे तो वो प्रोसेस वन टाइम टास्क है जो कि आपको 1 दिन लगे लेकिन आपके बाकी के 10 दिन बचा दे। अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट। तो अगर ये मॉडल अपने एक्सप्लोर करते हैं LM स्टूडियो, तो LM स्टूडियो को डाउनलोड करना वेरी सिंपल। अगेन कोई भी प्लेटफॉर्म की तरह LM स्टूडियो के पेज पे जाएंगे। It's a local AI on your very computer. Data does not leave your system. So local AI on your computer runs the local LLMs like GPT OSS, that is from ChatGPT, Wen, Gamma, DeepSeek, सारे कुछ मॉडल्स उसमें अवेलेबल हैं। And you download that in your system. Again, same thing. एक मॉडल है जो कि डाउनलोड होगा तो आपके सिस्टम पे थोड़ा टोल लेगा एंड अगेन वो लैंग्वेज, वो लामा जैसे फॉर एग्जांपल या GPT OSS, ये सारे कुछ डिफरेंट वेरी साइजेस में आ रहे हैं, राइट। एंड वो आपके सिस्टम पे टोल तो डेफिनेटली लेगा, तो सारा कुछ अपने यूज नहीं कर सकते। सो ये मॉडल लामा 3.2 ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये ऑफलाइन चल रहा है। नाउ आई टेक इट एयरप्लेन मोड सपोज।
चलो ये वाला नहीं चल रहा तो ओलामा में चलिए। सिंपल, वो भी एक सिंपल विंडो ही है। एंड यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कौन सा आपको मॉडल यूज करना है, राइट। Generally it doesn't take this much time, so it's now acting as your own very ChatGPT, जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, इट इज वर्किंग एयरप्लेन मोड, राइट। और ये अपने आप में आपके लोकल सर्वर में फुल फ्लेजेड LLM मॉडल है, और ये आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू चैट, राइट। सेम अगर आपको यहाँ पे चाहिए सॉल्यूशंस डिफरेंट वैरायटी के टेक्स्ट रिलेटेड सॉल्यूशंस, देयर इज वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट फॉर एग्जांपल लामा 3.2। आपको विजन इमेजेस के लिए चाहिए तो ग्रेनाइट बोल करके मैंने यूज किया था, वो ग्रेनाइट बोल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस तरह डिफरेंट मॉडल्स हैं, एंड यू डाउनलोड दिस इन योर वेरी सिस्टम एंड यू रन दिस। आप उसमें कैसे कैसे अपने मॉडल करेंगे वो अपने देखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट ए मॉडल, राइट। वो मॉडल डाउनलोडेड था इसलिए वो उसको लोड कर रहा है। यू कैन सर्च फॉर डिफरेंट मॉडल्स। See, you have these models here. मैंने Gwen बोल करके सर्च किया तो उसने ये सारे लिस्ट कर दिया, right? Now you have these different models, that is OpenAI, GPT, OSS. It can be downloaded, right? And अगर अपने को समझना है कि कौन से मॉडल को अपने को यूज करना है तो उस मॉडल को यहाँ पे एनालिसिस अपने कर सकते हैं। So this is an OpenAI GPT OSS. And what this model does is this, ठीक है? It's designed for low latency and specialized or local deployment. The model has 21 billion total parameter size, so huge parameter size, right? With only 3.6 billion active at a time, thanks to native, ये सारा कुछ उसमें define किया है, operating within 16 GB of memory. तो अगर आपके सिस्टम में 16 GB का RAM है, तो this model would work fine, right? So अपने सब मॉडल के अपने अपने restrictions हैं, and now if you download it, इसका साइज भी आपको दिख रहा है, it's 12.11 GB. So एक मॉडल का अपना ही साइज 12.1 GB, 11 GB है, right? डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट डेटा साइजेस हैं. So आप सारा कुछ नहीं लोड कर सकते एक साथ, और सारे कुछ को एक साथ कॉल भी नहीं कर सकते. तो आपको वहाँ पे सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि आपका पर्पस कौन से मॉडल में सॉल्व हो रहा है, राइट? अगर मैं जेमा मॉडल देखूं तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है. Family of lightweight state-of-the-art open from Google, okay, and they are a text-to-text decoder only large language model. So अगर आप इसको लोड कर लेंगे and if you want to do an OCR on that image, ये मॉडल फेल कर जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? तो यू हैव टू एनालाइज कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देयर वुड बी अ केस जहां आपने एक सोल्यूशन बना लिया वेयर यू वुड बी कॉलिंग टू मल्टीपल मॉडल्स. तो अगर टेक्स्ट के लिए इसको कॉल करेंगे तो इमेज के लिए एक डिफरेंट मॉडल को कॉल करेंगे, राइट? सो इट कैन बी अ मल्टी मॉडल सोल्यूशन.
इस तरह आपको सोल्यूशन अपना डिजाइन करना है। उसी तरह एक और प्लेटफॉर्म है Jan.ai, ओके, डाउनलोड फॉर विंडोज, सेम केस, आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट ऑफलाइन LLM मॉडल्स को आप पुल कर सकते हैं एंड देन डिजाइन योर सोल्यूशन। रीजन भी क्या है, आप कोई भी LLM मॉडल को कॉल कर लें और सिस्टम में इंस्टॉल कर लें तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। सोल्यूशन तब बनेगा जब आप ये टूल्स क्रिएट करेंगे। When you create a tool like this, right? तो उसी तरह अगर जैसे श्याम सर वाज टेलिंग कि अपने एक लोकल आई लव PDF अपने सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं, हाउ? तो जनरली क्या होता है, कोई PDF को आपको लेकर के जाना है बाहर, आप क्या करते हैं, मर्ज करना है उसको, तो आई लव PDF आप ऑनलाइन साइट एक्सेस कर लेते हैं, राइट? बट मेरे को वो नहीं करना है। मेरे को यहाँ पे अगर कोई डिफरेंट PDF को एक्सेस करना है, फॉर एग्जाम्पल ये, और इसके साथ कुछ और मर्ज करना है, जो कि मैं अभी स्पेसिफिकली डाउनलोड किया, फॉर एग्जाम्पल 7। अब इसको आपको सिंपली मर्ज करना है, यू कैन मर्ज इट। यू वांट टू पेज नंबर इट, यू कैन डू दैट। यहाँ पे पेज नंबर आ गया। सो सपोज यू आर सबमिटिंग अ 400 पेज का इनकम टैक्स का सबमिशन, तो क्या करेंगे, आर्टिकल को पेज नंबरिंग करने के लिए थोड़ी लगाएंगे 400 पेज। आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि वो रेपिटेटिव टास्क है नेचर में, लेट अस जस्ट ऑटोमेट दैट। एंड ये पाइथन के बेसिस में हो रहा है। अगर उस डॉक्यूमेंट पे आपको एनालिसिस करना है नाउ, सो यू कैन टेक दैट ऑफलाइन ओलामा या डिफरेंट LLM मॉडल्स का हेल्प। सो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सोल्यूशन बना सकता हूँ। तो यू विल हैव टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन लाइक दिस। अब OCR आप सबको रिक्वायर्ड है, इसको आप एलॉबरेटेडली आप डिफाइन कर सकते हैं लॉजिक्स। दिस इज जस्ट अ समराइजेशन टूल, बट अगर OCR को डिफाइन करना है तो you'll have to go a step further, जहाँ पे विजनरी मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा जो कि इमेज रिकॉग्निशन के लिए काम आ रहे हैं, राइट? एंड नाउ यू कैन क्रिएट योर सोल्यूशन। तो थिंग इज कि स्टिकिंग टू ChatGPT, क्लॉड एंड एवरीथिंग, ये थियोरेटिकल सब सही लग रहा है। एज प्रोफेशनल्स, एज CAs, वी कैन नॉट टेक क्लाइंट डेटा ऑनलाइन, ये अपना रिस्ट्रिक्शन है। अभी तक क्यों नहीं अपने इतना फुल फ्लेजेडली सारे मॉडल्स को यूज कर पाए? क्वेश्चन तो ये अराइज होता है ना, तो क्वेश्चन का आंसर यही है कि क्योंकि क्लाइंट डेटा है, तो आपके मन में पहले ही रेस्ट्रिक्शन आता है, भाई इसको तो कैसे हम ऑनलाइन ले जाएं, राइट? तब आपको सोल्यूशन डिराइव करना पड़ेगा कि मैं लोकल LLMs पे मूव करूँ। एंड लोकल LLMs का ब्यूटी यही है कि द डेटा स्टेज इन योर वेरी सिस्टम, इट डजंट मूव आउट। ऑफलाइन में भी ऑपरेट करेगा, तो रिलायबिलिटी, डिपेंडेंसी ऑन ऑनलाइन नेट पे जाना है, कॉस्ट, ये सारा कुछ अपना रिड्यूस होगा। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स वी जनरली सजेस्ट इज मिनिमम सेटअप के लिए, जैसे अगर फॉर टेक्स्ट के लिए अगर अपने कर रहे थे तो 4-core CPU विद 8 to 16 GB रैम इट्स इनफ, वो कर देगा आपका लोकल LLM के लिए काम। बट अगर वो फर्म लेवल प्रोडक्शन पे कर रहे हैं जहाँ पे इमेज एंड ऑल एवरीथिंग इज बीइंग एनालाइज, तो मैं बोलूँगा कि एक तो हायर एंड CPU आपको रिक्वायर्ड होगा, बट इट्स अगेन अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट? So benefits of offline GPTs for CAs is data privacy and ethics. We are addressing that very foremost requirement in our profession, data privacy, और ethical requirements जो अपने उसको address कर रहे हैं सर। Regulatory comfort है अपने पास, जितने भी requirements अभी आने वाले हैं, DDPA वगैरह ये सब अपने जो आएगा फ्यूचर में भी, तो क्लाइंट का डेटा रिलेटेड उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि अपने को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन दैट केस ये लोकल LLMs अपने को हेल्प करेंगे।
ये कॉस्ट सेविंग है। कोई भी सोल्यूशन अपने जो बना रहे हैं लोकल LLM के थ्रू, इसमें बेसिक लाइन ऑफ कोडिंग इन्वॉल्व है, राइट? जैसे वो टूल आपको बनाना था, तो वो टूल बनाने के बाद आपको क्या लगा, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व था क्या? नेट का कनेक्शन आपके ऑफिस में है ही, चैट GPT फ्री है, कोड आपको उससे लिखवाना है, सोल्यूशन वो बना के देगा। तो कॉस्ट कहाँ इन्वॉल्व है? कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं। बट वही अगर मैं कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाता हूँ, जैसे make.com, N10 और कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो क्या होता है, उसके API कॉस्ट इन्वॉल्व है, राइट? डेटा प्राइवेसी का इश्यू तो रहेगा क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एनहांस प्रोडक्टिविटी, वन टाइम एफर्ट, एक बार एफर्ट बन गया, लग गया आपका, वो सोल्यूशन बन गया, नाउ यू कैन यूज इट n नंबर ऑफ टाइम्स। कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कितने बार यूज करें? नहीं। मे बी ऑनलाइन है तो उसका रेस्ट्रिक्शन होगा कि यू कैन एक्सेस गूगल वर्कस्पेस है या परप्लेक्सिटी है, आज आपका लिमिट खत्म, आज आपका लिमिट एग्जॉस्ट हो गया। बट ऑफलाइन LLMs में वो आपके पास नहीं है, यू कैन यूज इट n नंबर ऑफ टाइम्स। एंड फुल कस्टमाइजेशन, फुल कस्टमाइजेशन एज इन थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, जहां आप खाली सोच रहे हैं कि मेरे को ऐसे करना है, और वो चैट GPT, क्लॉड, डिफरेंट मॉडल जो कि फ्री है मार्केट में, उसको यूज करते हुए आपको खाली वो सोल्यूशन बनाना है। एक सिंपल सा अगर मैं सोल्यूशन बोलूं कि अगर कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाने में कितना एफर्ट लगेगा? कोई भी एक अगर मेरे को बोल दे कि इसका क्या लाइन ऑफ कोडिंग हो, जो कि मैं अपने चैट GPT से लिखवा देते हैं, एनीवन सर, क्या एक कैलकुलेटर डिफाइन करना है? एज सीएस अपने लॉजिक्स वेरी क्लियर है, अपने को क्या करना है ये अपने को हमेशा पता होता है। तो अगर मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना है तो मैं उसको क्या बोलूं? पाइथन में अगर मेरे को बनाना है तो मैं उसको क्या बोलूं? एनीवन? हाँ सर, Make a 10-digit calculator. मेक अ 10 डिजिट Calculator which can calculate the plus minus subtraction addition. कैलकुलेटर है तो विद एवरी फंक्शन, राइट? With अगर scientific चाहिए होगा तो scientific वाला addition वर्क साइंटिफिक बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर, तो इसको सिंपल रखते Normal हैं। रखते हैं। सो एवरी फंक्शन, ओके सर, जस्ट अ सेकंड, आ गया। विद एवरी फंक्शन विद अ ब्यूटीफुल, हाँ, उसको अपने जनरल टर्म्स में UI UX GUI जो बोलते हैं, ग्राफिकल, राइट? तो ठीक है सर, वो बहुत स्मार्ट है, अपने से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो समझ जाएगा सर। UI UX and GUI something, right? Write me a Python code for this, okay? Handy? Let's just see. अपने को तो पाइथन नहीं आता, उसको आता है। वो साइंटिफिक भी बनाता है। Those are libraries. पाइथन के अपने अपने लाइब्रेरीज हैं। पूरा प्रोसेस डिफाइन कर रहा है आपके लिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस। So could I have restricted that I don't want a scientific this thing but only an athlete? यही तो ब्यूटी है सर, आपको बस सोचना है और उसको लॉजिक देना है। इफ यू वांट यू कैन डू दैट। वो लॉजिक आपको देना है कि यू डू नॉट वांट टू एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ दैट कैलकुलेटर, राइट। नाउ इट हैज गिवन मी दिस, क्या करना है, मेक श्योर यू हैव इंस्टॉल्ड दिस। तो हाउ यू इंस्टॉल अ कोड इज सिंपल, ये कॉपी किया, CMD कमांड प्रॉम्प्ट में गया, या पावर शेल में भी जा सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए सर, वो सॉल्व कर लेते हैं। So pip install, पाइथन की कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, pip install that same library। अब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी होगा तो वो बोल देगा कि ऑलरेडी रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। आपके सिस्टम में अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल कर देगा। एंड दोज आर वेरी स्मॉल लाइब्रेरीज, ज़्यादा बड़े नहीं है। नाउ इट हैज गिवन मी दिस कोड। अब मैं क्या करूँ,
मैं सिंपली उस कोड को कॉपी कर लिया हूँ एंड आई हैव टेकन इट टू विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ फॉर राइटिंग दैट कोड एंड डन, दिस इज डन एंड नाउ आई सी कैसा कैलकुलेटर बना है। अच्छा, उसको सेव करने बोल रहा है, मैं डेस्कटॉप पे एक बार सेव कर दे रहा हूँ। लेट्स सी, सो मैंने रन किया है, वो बन गया, राइट। सो दिस इज हाउ सिंपल कोडिंग इज नाउ। ये कितना देर लगा अपने कोई कैलकुलेटर बनाने में? लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था, 5 मिनट के अंदर बन गया। तो उसी तरह अगर आपके ऑफिस में ये अपने चैट जीपीटी का हेल्प करके कोडिंग किया, राइट, आप ये मॉडल ऑफलाइन भी अपने बना सकते हैं, बट फॉर द सेक्स ऑफ पर्पसेस ऑफ कोडिंग मैं बोलूँगा क्यों ऑफलाइन करना है, लेट अस जस्ट डू द लॉजिक डिफाइन ऑनलाइन। अब अगर इसमें कोई डेटा एक्सेस है तब अपने ऑफलाइन LLM मॉडल्स पे आ जाएंगे, where we'll be using in Ollama and different models. So this is how simple coding is nowadays. मैक में क्या है, ये जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हो गया, ऑफिस में विजुअल का आप यूज कर रहे हो, मैक में कोई है क्या? सर जुपिटर नोटबुक वगैरह तो सब दोनों ही पे चल रहे हैं, तो आप पाइचान यूज कर सकते हो, दोनों पे ही चलेगा। तो डिफरेंट मॉडल्स है जो कि मल्टी मॉडल्स हैं, सब पे चल रहे हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का इसमें चल रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको गिटहब के संग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो गिटहब अपने आप में बहुत बड़ी रिपोजिटरी है जहाँ पे बहुत सॉल्यूशंस ऑलरेडी डिफाइंड है। गिटहब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये प्लेटफॉर्म है गिटहब के, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है ना, जहाँ पे पाइप कोड्स वगैरह डिफरेंट टूल्स वगैरह ऑलरेडी फ्लोटेड है। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको अपना ही टूल बनाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो इफ अ कम्युनिटी इज मेड, जहाँ सारे टूल्स है आप वहाँ से डाउनलोड कर ही सकते हैं। तो थिंक बियॉन्ड चैट जीपीटी, थिंक बियॉन्ड क्लॉड एंड थिंक बियॉन्ड परप्लेक्सिटी। ये सारे ऑटोमेशंस अब आउटडेटेड बोलूँगा मैं, लाइक श्याम से बस बोल रहे थे कि क्या जनरेटिव एआई के फेस से एजेंटिक एआई पे आ गए। सो दिस इज द एरा ऑफ ऑटोमेशन। तो एज चार्टेड अकाउंटेंट्स, पहला क्वेश्चन आफ्टर दिस सेशन शुड अराइव इन योर माइंड कि क्या मैंने कोई सोल्यूशन बनाने की स्थिति में हुआ। तो कोई यूज केस सर है, विल टेक 3 यूज केसेस कि आपको क्या लग रहा है कि अपने कोई टूल बना सकते हैं क्या? एनीवन सर? हाँ, जैसे रेगुलर हम लोग मेल चेक करते हैं, मेल में भी इम्पोर्टेंट मेल क्या है, उसमें से मान लीजिए इम्पोर्टेंस में भी कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए अगर हाँ, कैटेगराइजेशन ऑफ द मेल्स, ऑटोमेटिक प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द मेल्स, राइट। हाँ, कीवर्ड का लॉजिक्स दे दिया, नंबर जहाँ पे इन्वॉल्व है या कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्व है वो वाइटल है। सो दिस सोल्यूशन कैन बी मेड, दिस नीड नॉट बी एन ऑनलाइन सोल्यूशन एनीमोर, ये ऑफलाइन चल सकता है एंड द डेटा एनालिसिस कैन बी डन इन योर वेरी सिस्टम। वो ऑनलाइन नहीं जाएंगे बिकॉज जहाँ क्लाइंट का डेटा है अपने उसको ऑनलाइन नहीं ले जाएंगे, ये अपने आज क्या कर लेते हैं, कसम खा लेते हैं। तो और क्या सोल्यूशन कर सकते हैं सर? बहुत बढ़िया सोल्यूशन था जीमेल का, जो है ऑटोमेशन पूरा सिस्टम में कर लिया। एनी अदर सोल्यूशन यू कैन? GST return filing offline, we can do that very easily through Python and Selenium. If you want to write down, you can do that. Python and Selenium web scraping के लिए यूज होता है। सारा कुछ अपने फिलअप करके रिटर्न लॉगिन करके फाइलिंग तक का सारा प्रोसेस एंड टू एंड दैट कैन बी डन ऑनलाइन। इनकम टैक्स पोर्टल पे अगर अपने जा रहे हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पे इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना है, ITR डाउनलोड करना है, PDF चालान्स डाउनलोड करना है, कोई नोटिस आया कि नहीं अप टू डेट आपको रखना है, सिस्टम में आ जाए, आपके एक्सेल में समरी बन जाए उसका, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा कुछ ऑटोमेट हो सकता है। सेलेनियम, SELENIUM, यस सर, व्हाई नॉट, इट्स बियॉन्ड लिमिट, जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा यूज केस है उसका। एनी अदर यूज केस यू आर थिंकिंग ऑफ सर? और क्या लग रहा है, और क्या सोल्यूशन कर सकते हैं अपने? UI, UX, GUI, that is user interface, user experience, graphical user interface. ये generally for the sake of dashboard, अगर मैं उसको ये चीज़ नहीं बोलता ना
तो वो क्या है, कोड में रन करता, फिर वो आपको बोलता है कि आप टाइप करो नंबर्स एंड अब ये दे दिया तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर पे जाकर के खाली सिलेक्ट करूंगा, अब मैं खाली इस पे सिलेक्ट करूंगा, राइट, अदरवाइज आप टाइप करते रहते हैं। तो एक इंटरफेस तो चाहिए, डैशबोर्ड तो चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट सॉल्यूशंस एंड डेटा एनालिसिस, सारा कुछ ऑफलाइन। विंडोज के अलावा भी और भी क्लाउड बनाए हैं, प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। मैक तो सर यूज कर रहे हैं लोग, तो मैक में भी चलता है। लिनक्स बोल करके है, मैं तो नहीं यूज किया। तो मैक एंड विंडोज इज व्हाट आई हैव एक्सेस्ड, तो ये दोनों पे तो चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एआई, अपने जो सोच नहीं सकते उतना ये कर सकता है। तो गोइंग फॉरवर्ड सेशन जो एजेंटिक एआई का था, दिस इज अ टूल, दिस इज काइंड ऑफ एन एजेंटिक एआई। मेनी ऑफ अस हैव जॉइंड पोस्ट लंच, तो वो उनके लिए भी मैं ये दे दे रहा हूँ क्यूआर कोड, यू कैन एक्सेस दिस जस्ट 2 मिनट्स में। So you can scan this QR code and you will get access to the entire PPT, the entire pie tool उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जो भी समराइजेशन और OCR रीडिंग के लिए है। And you can also have the access to the entire installation guide about the tool. You can have access to the offline Olama setup, जो कि अपने LLM मॉडल का बात कर रहे थे, and the Olama setup का पूरा गाइड, उसका फ्लो चार्ट भी पूरा कुछ डिफाइंड है, वो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उस वेरी फोल्डर में जब आप एक्सेस करेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, एंड यू हैव द एंटायर एक्सेस टू द फ्लो चार्ट। वो सारा फ्लो चार्ट बना हुआ है, कैसे सिस्टम में क्या करना है। एक बार क्यूआर कोड दीजिए ना। कौन सा सर? QR कोड। क्यूआर कोड बना हुआ। सो दिस इज द क्यूआर कोड, ये आप स्कैन करके सारा कुछ फोल्डर लिंक है गूगल ड्राइव के थ्रू मिल जाएगा। एंड प्लीज डर्टी योर हैंड्स, मतलब क्या है ना, ये वर्कशॉप नहीं था, अदरवाइज अपने करते बहुत कुछ, जहाँ अपने इंस्टॉलेशन से लेकर के एंड टू एंड पूरा करते, बट वो पूरा प्रोसेस उसमें डिफाइंड है ऑलरेडी। तो अपने हाथ को गंदा करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर है तो उसको आप थियरी नहीं समझ सकते। नहीं आएगा सर आपको, अब आप देखना रन करके सिंपली हो जाएगा, राइट। So just 2 minutes for any question and questions, किसी को कुछ है तो we can answer that. Just a second. You can connect over LinkedIn, ये scan QR code है, आप connect कर सकते हैं anytime. You can drop in questions. I will be very happy to help. And we can बोलते हैं ना, मंथन कर सकते हैं अगर कोई solution पे derive भी करना है तो. So you can any questions sir? और हमें है सर। हाँ सर होता है, यू कैन डिफाइन, सारा कुछ हो सकता है, SQL के थ्रू हो सकता है। एनी अदर क्वेश्चन सर? सर ये तो CS स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज ने लॉन्च किए हैं, AI for rising achievers, I guess. Any other questions, sir? So I will rest my case. I am CA Abhishek Agarwal signing off, and this is just the beginning. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for the wonderful, engaging and knowledgeable session. And for this, I would request CA Shikha Agarwal to come and felicitate us, sir, as a token of appreciation.